میرے عزیزو خدا ہمارا زوراور خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، اور یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے یہ دن بخشا کہ ہم آج اس نئے سال کے اندر انٹر ہوئے اور یہ نیا سال ہماری زندگی میں آیا۔ اور بہت سارے سال جو تھے وہ آئے اور گزر گئے، اور ایسے ہی کئی سال گزر جائیں گے، مگر یاد رکھیں جو سال گزر جاتے ہیں، جو سال بیت جاتے ہیں، ان کی طرف غور نہ کریں، بلکہ آنے والے سال کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے جلال کے لیے ریڈی کریں۔ اپنی جو وشز ہیں، آپ کی جو دعائیں ہیں، جو خدا آپ کو رویا دینا چاہتا ہے، اس کے بارے میں غور کریں، تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ توجہ کریں کہ خدا جو آنے والا سال ہے وہ میری زندگی میں برکتوں کا سال ہو، میرے خاندان کے لیے برکتوں کا سال ہو، میری روحانی زندگی جو ہے وہ تجھ میں ترقی کرے۔ جو پرانا سال بیت گیا اس کی ان باتوں کو بھول جائیں، بلکہ آنے والے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ خدا یہ جو 2024 کا سال جو تمہیں ہماری زندگی میں دیا ہے، اس سال ہم زیادہ سے زیادہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، زیادہ سے زیادہ تیرے کلام کا پرچار کرنے والے بنیں، چاہے وہ بھائی ہیں، چاہے وہ بہنیں ہیں، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، چاہے وہ بیٹے ہیں، چاہے بچے ہیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹی اور بیٹیوں کو کلام کی طرف متعارف کروائیں، کلام کا ان کو تربیت دیں، دعا کرنے کی ان کو تربیت دیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نیا سال جو ہے یہ ہماری زندگی میں نہایت ہی ایک اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی زیادہ قوت اور زور کا معنی رکھتا ہے۔ پرانے سال میں اگر آپ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جنہیں آپ دہرانا نہیں چاہتے تو نئے سال میں خداوند کے ساتھ عہد کریں کہ خدا اس نئے سال کے اندر تو ان غلطیوں کو میری زندگی سے، ان برائیوں کو، ان گناہوں کو میری زندگی سے نکال، تاکہ آنے والا سال جو ہے وہ میرے لیے خوشحالی کا سال ہو، میرے خاندان کے لیے خوشحالی کا سال ہو۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم عادت بولتے ہیں، اور کچھ لوگ جیسے پنجابی کی مثال بنی ہے کہ عادتیں جو ہیں، بری عادتیں جو ہیں وہ سروں کے ساتھ جاتی ہیں، مگر یاد رکھیں ہمارا خداوند یسوع مسیح ان بری عادتوں کو ختم کرنے والا خدا ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ اٹیچ ہیں، چاہے وہ آپ کی نسل کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ نسلی گناہوں کو، نسلی عادتوں کو زندگی سے نکال دیتا ہے۔ جو بری عادتیں ہیں یہ میرے اور آپ کے خداوند کی قدرت ہے جو وہ ہمارے ساتھ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی سب سے بڑی فتح ہے ہماری کہ جب جو خصلتیں ہماری زندگی میں ہیں وہ ان کو دور کرے۔ سو میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21 باب اور اس کی پہلی 8 آیات پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21 باب، اس کی پہلی 8 آیات۔ جی جلدی سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر
बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आमीन। खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उन्हें बरकत दे। मेरे अजीजों, आज का जो आयात हमने पढ़ी 21 बाब और 22 बाब, ये हमारे लिए एक नई पैदाइश का साल है, एक नई जिंदगी का साल है। अगर आप इससे पहले देखें 20 बाब में, तो 20 बाब के अंदर जो है खुदा ने हर एक चीज को नेस्त और नबूद कर दिया, यानी कि उन सारी चीजों को जो खुदा के खिलाफ थी, जो खुदा के खिलाफ सर खड़े किए हुए थी, जो अपना सर उठाए हुए थी, यानी अबलीस को, झूठे नबी को, अज़दहे को, शैतान को, पुराने सांप को, उन सब को, आलमे अरवा को, उन सारी चीजों को उसने आग की गंधक के अंदर उसको जला दिया, हमेशा हमेशा के लिए। इन सारों को, और जो इनकी प्रस्तिश करते थे, जो इनकी पूजा करते थे, उन सब को भी खुदावंद यीशु मसीह ने आग की झील में डाल दिया, आग की झील में इनको डाल दिया, और उन सब लोगों को उनके अंदर जला दिया जो इनको पैरोकार थे, जो गुनाह के अंदर जिंदगी गुजारते थे। और जो 21 बाब है, इसके अंदर खुदा ने हर एक चीज जो जमीन पर थी, आसमान पर थी, उन सबको बदल दिया, उन सबको नया बना दिया। पुरानी चीजें जाती रही, पुराना आसमान जो है वो उसने खत्म कर दिया, पुरानी जमीन जो थी वो खत्म कर दी, और उसने नया आसमान और नई जमीन बना दी, ताकि जो उसके लोग हैं, जो उसके मुबारक लोग हैं, वो उस पुराने शहर, उस नई जमीन में और उस नए शहर में, उस नए आसमान में रहकर खुदा की परस्तिश, उसकी इबादत करने वाले बने। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है? फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानीदा रास्ता थी जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हुआ। यानी कि जो पुराना आसमान था जो आज मौजूद है, और नई जमीन जो आज मौजूद है, ये दोनों खत्म हो गई, ये दोनों फना हो गए, ये बर्बाद हो गए। और खुदा ने एक ऐसा आसमान और एक ऐसी जमीन को फिर बनाया, क्रिएट किया, उनको नया बनाकर रख दिया इंसान के लिए, जो उसके हुजूर में प्रस्तिश करते थे, जो उसके हुजूर में चलते थे, उनके दरमियान एक नया आसमान और नई जमीन को उसने बना दिया। पुराना आसमान और पुरानी जमीन क्यों खत्म कर दी गई? मिटा डाली खुदा ने, उनको फना कर दिया, बर्बाद कर दिया, इसलिए कि आसमान पर भी गुनाह हुआ था और जमीन पर भी गुनाह हुआ था, और आसमान और जमीन ये दोनों खुदा के नजदीक जो थे नाराज हो गई थी। इसलिए खुदा ने इन दोनों चीजों को हटा दिया, इनको खत्म कर दिया, और एक नया आसमान और नई जमीन को उसने बनाया। और उसके बाद अगर देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है, फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर खुदा के पास से उतरते देखा। फिर नया शहर मुकद्दस यरूशलेम, आज अगर आप पूरी दुनिया का मुआवजा करें तो सबसे मुकद्दस जगह जो है वो बनी इस्राइल कौम के इलाका में है, मुल्क इस्राइल में है, यानी कि यरूशलेम हैकल, जहां पर खुदा सुकूनत करता था, जहां पर खुदा रहता था, उसकी हजूरी वहां पर रहती थी, उसका अमर वहां पर रहता था। क्योंकि अगर आप देखें खुदा उनके कलाम में से कि किस तरह खुदा खैमों में रहता था, उसके रहने के लिए जगह नहीं थी। मूसा से लेकर दाऊद तक वो खैमों में रहता था, बनी इस्राइल कौम के दरमियान। और फिर दाऊद के दिल के अंदर ये बात आई जब उसने अपना घर बनाया, अपना महल बनाया, तो उसने कहा कि मैं खुदा के लिए भी एक घर को बनाऊंगा। और खुदा ने उसको मना कर दिया कि तू मेरे लिए घर ना बनाना, क्योंकि तेरे हाथ खून आलूदा है।
बल्कि तेरा बेटा जो तेरी सुलभ से पैदा होगा वही मेरे घर को बनाएगा। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देखो खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा, यानी कि खुदा की हजूरी हर वक्त उनके लोगों पर, उनके जो मानने वाले, जो ईमानदार लोग हैं, जिन्होंने जमीन पर रहते हुए ना इब्लीस की परस्तिश की, ना उस हैवान की परस्तिश की, ना उसकी मोहर को अपने बदन पर लगाया, बल्कि वो फतहमंद हो गए। उन्होंने जमीन पर रहते हुए अजियतें सही, दुख सहे, मुसीबतें सही, परेशानियां देखी और आसमान पर उनके लिए एक नया आसमान और एक नई जमीन और एक नया शहर मुकद्दस यरूशलेम बनाया गया। याद रखें, जो गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? आग है, जहन्नुम की आग है। उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो इस जमीन पर रहते हुए अय्याशियां करते हैं, नशे करते हैं, शराबें पीते हैं, जुए खेलते हैं, ज़िनाकारी करते हैं, हर एक बुरा काम उनकी जिंदगी में पाया जाता है। मगर जब वो उनका एंड होता है तो वो जहन्नुम की आग में जाते हैं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। मगर जो खुदा के लोग हैं, जो इन चीजों से दूर रहते हैं, जो इन चीजों से बहुत ही दूर अपनी जिंदगी को खुदा के लिए गुजारते हैं, जो बदी से दूर रहते हैं, गुनाह से दूर रहते हैं, नशे से दूर रहते हैं, ज़नाकारियों से दूर रहते हैं, इब्लीस की मोर से, उसकी हमदो सना से दूर रहते हैं, खुदा उनके लिए, उनके दरमियान खैमाज़न होगा। खुदा की हजूरी उनके दरमियान होगी, खुदा की मामूरी उनके दरमियान होगी और वो खुदा के हुजूर 2400 घंटे हालेलुया के नारे बुलंद करते होंगे। वो फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। अगर आप पढ़े इसके 10 आयत में तो वहां पर लिखा है, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया और उसमें खुदा का जलाल था। उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो, और उसका शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जुनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। और जो मुझसे कह रहा था कि उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाने का आला यानी सोने का गज था। याद रखें मेरे अज़ीज़ों कि खुदा के जो लोग हैं आज जमीन पर रहते हुए वो अपना इंसाफ लोगों के पास जाते हैं ढूंढने के लिए, जजों के पास जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं कि वो कहीं से हमें इंसाफ मिल जाए। मगर उनके लिए जमीन पर कोई इंसाफ नहीं। इंसाफ करने वाला है तो वो खुदा जो आसमान पर बैठा है, और वो भी अभी इंसाफ नहीं करेगा। अगर आप पढ़ें उसकी 20 बाब की अगली आयत में तो लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। उनकी आंखों के सब आंसुओं को खुदा पहुंच देगा, यानी कि सारे आंसू उसके पहुंच दिए जाएंगे जिन पर इस जमीन पर रहते हुए जुल्म होता है। और वो अपना जुल्म जो है, अपनी जुल्म की इंतहा जो है जो उस पर करते हैं, अपना फैसला अपने खुदा पर छोड़ देते हैं। और जब वो फैसला सुनाता है तो वो कभी भी अपने लोगों का बेइंसाफ नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो उनका इंसाफ करेगा और उनकी आंखों के सब आंसुओं को क्या करेगा? पहुंच देगा। और फिर इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द,
बल्कि पहली चीजें जाती रही, पहली चीजें जाती रही। पहली चीजों के अंदर क्या है? आहो नाला है। पहली चीजों के अंदर क्या है? दुख दर्द है, सताया जाना है। ये पहली चीजें हैं जो हमारी जिंदगी से जाती रहेंगी। पहली चीज जो मौत है वो हमारी जिंदगी से जाती रहेगी। और फिर क्या कहता है? और जो तख्त पर बैठा हुआ था, जो तख्त पर बैठा हुआ था, उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना दूंगा। मैं जितनी चीजें हैं उन सबको नया बना दूंगा। मैंने आसमान को नया बना दिया है, मैंने जमीन नई बना दी है, मैंने नया यरूशलेम बना दिया है। अब उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे होने चाहिए? अगर हम खुदा के कलाम में देखें, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत। दूसरा कुरिन्थियों मुकद्दस पौलुस रसूल का खत कुरिन्थियों के नाम, उसका दूसरा खत। हाँ जी, निकाल लिया। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, एक मिनट, 5 बाब उसकी 17 आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। क्या कहता है खुदा का बंदा पौलुस रसूल? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो इसलिए अगर कोई मसीह में है, किस में है? मसीह में है, वो मसीह में मौजूद है। इसमें लचक वाली बात नहीं है कि हो सकता है कि अगर वो मसीह में हो सकता है कि वो मसीह में है, शक वाली बात नहीं है। या उसने ये लिखा हो कि हो सकता है वो मसीह में हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात का बयान करता है कि अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? नया मखलूक है। और नए मखलूक के लिए, उसके रहने के लिए, उसके चलने फिरने के लिए नई जगह भी खुदा ने पहले से बना दी है। नया मखलूक वो है इस दुनिया में जब हम खुदा यीशु मसीह को पहन लेते हैं। अगर हम गलतियों के खत 3 बाब में देखें, 3 बाब उसकी ग़ालिबन 18 आता है, जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, बल्कि ये 3 बाब सुना है। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 3:16, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसने क्या कर लिया? मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसने उसको पहन लिया। और जिसने मसीह यीशु को पहन लिया वो एक पुराना मखलूक नहीं बल्कि वो नया मखलूक बन गया है। और उसकी पुरानी चीजें जो हैं वो देखो जाती रही, पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी उसकी चीजें, पुरानी इंसानियत जो गुनाह आलूदा थी, जो बदी के अंदर थी, जो गुनाह के अंदर थी, जो नशेबाजियों के अंदर थी, हर तरह की गंदगी जो उसके बदन में थी, वो खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से धुल गई, पाक साफ हो गई। और देखो वो एक नया मखलूक है। और नए मखलूक के लिए नई जगह खुदावंद यीशु मसीह ने तैयार की। और क्या कहता है यूहन्ना की इंजील में? देखो मैं जाता हूं बाप के पास और तुम्हारे लिए क्या करता हूं? जगह तैयार करता हूं, और फिर मैं आऊंगा और तुमको वहां पर ले जाऊंगा। और वह जगह कौन सी है? नया आसमान है, नया यरूशलेम है, नई जमीन है। ये नए मखलूक के लिए ये सारी की सारी चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने बनाई हैं। अगर हम देखें गलतियों के खत निकालें जल्दी से, पौलुस रसूल का खत गलतियों की कलीसिया के नाम 5 बाब उसकी 23 है, 5 बाब उसकी 23 है ऐसे। और जो मसीह यीशु और जो मसीह समेत मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं
उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जो मसीह यीशु में है, उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी बुरी आदतों को, अपने गुनाहों को, अपनी रगबतों को, जो उनको और सिमत की तरफ लेकर जा रही हैं, उनको क्या कर दिया? सलीब के ऊपर खींच दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में से ऐसी चीजों को निकाल कर बाहर कर दिया ताकि वो नए मखलूक बन जाए। और नए मखलूक बनने के लिए सबसे पहली जो बात है वो खुदावंद यीशु मसीह का आपकी जिंदगी में होना जरूर है। और जब वो जिंदगी में है तो आप नए मखलूक हैं। जब उसका कलाम आपकी जिंदगी में है तो आप नए मखलूक हैं। खुदा के कलाम में ग्रंथियों के पहले बाब, पहला ग्रंथियों में लिखा है, उसके पहले ही बाब में कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के दरमियान क्या है? खुदा की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत है जो उसकी सलीब के ऊपर है, जो उसकी सलीब की वजह से है। क्योंकि वो बेवकूफी समझते हैं कि सलीब की वजह से निजात मिल सकती है, सलीब की वजह से मखलसी मिल सकती है, मगर ऐसी बात है क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी रग़बतों को सलीब पर खींच देना है। और वो हमारे गुनाहों के लिए मारा और कूटा गया। उसने हमारे लिए जगह तैयार की है। 21 बाब और 22 बाब, ये दोनों के दोनों अबवाब जो हैं, ये हमारी खुशी का सबब हैं, ये हमारी अबदी तसल्ली का सबब हैं, ये हमें हमेशा हमेशा के लिए दे दिए गए हैं। और इसका जिक्र खुदा ने हमें वहां पर जाकर बयान बताया नहीं गया, बल्कि अभी से उसने अपने कलाम में अपने बंदा के वसीला से इस नबूवत की किताब के अंदर दर्ज कर दिया है कि ये तसल्ली, ये बरकतें, ये सारी चीजें मैंने अपने लोगों के लिए रखी हैं जो ना तो हैवान की परस्तिश करेंगे, जो ना उसके बुत का सिजदा करेंगे, जो ना अबलीस को सिजदा करेंगे, बल्कि उनकी गर्दनें जो हैं वो मेरे लिए झुकेंगी। वो अबलीस के आगे नहीं झुकेंगी, बल्कि वो मेरे हुजूर में झुकती हैं और मैं उन्हीं को सरफराज करूंगा। पिछले दिनों भी मैं ये बात कर रहा था कि ये जो हमें मुफ्त के आटे मिलते हैं, ये जो हमें बेनजीर स्कीम के, इमरान खान की स्कीम के जो दूसरे पैसे हमें दिए जा रहे हैं, ये हमें एक लालच हमारे अंदर भरा जा रहा है। और इसकी हकीकत जो है वो यही है कि ये 666 की एक बहुत बड़ी साजिश है जो मसीही लोगों के लिए है। वहां पर जब जाते हैं तो भीड़ की भीड़ लगी होती है, धक्के मुक्के लगते हैं चंद रुपयों के लिए, अपने हम ईमान को बेच देते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, मगर वो हमारा इन चीजों के लिए जहन बना रहे हैं कि ये रेडी हो जाएं आने वाले दौर के लिए, ताकि इनके लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो। जब 666 का दौर होगा तो वो इन पेजों पर आपको नाम इंदराज नहीं होगा कि आपको पेज दिए जाएं, उनके ऊपर आप अपना नाम, पता, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारी चीजें आप उनको दें, लिखनी पड़े। बल्कि जब ये दौर होगा तो मेरे से याद रखें, आपके अंदर चिप लगाई जाएगी, ऐसी चीजें आपको लगाई जाएगी जिसकी वजह से आपको खाने पीने की अशिया मिलेगी। सुआएं अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम दुआ करेंगे खुदा की हजूरी में, थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे।